مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ کا خیر مقدم بارگاہ مسیح میں آج آپ برکت پائیں اور اپنا بوجھ، اپنی بیماری، اپنی کمزوری، اپنے ایسے حالات جن کا آپ سامنا نہیں کر سکتے، وہ سب آج خدا کی حضوری میں ان کو نست و نابود ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند آپ کو نئے سرے سے اٹھا کھڑا کرے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ شریر گھرے گا تو اٹھنے نہ پائے گا۔ شریر گھرے گا تو اٹھنے نہ، شریر کون؟ شیطان۔ شیطان گھرے گا تو اٹھنے نہ پائے گا، لیکن میرا بندہ راست باز اگر 7 بار گھرے گا تو وہ 7 بار اٹھ کھڑا ہوگا۔ کلام مقدس کے اندر کچھ 2 دن پہلے سیمی مجھ سے کہتے ہیں کہ سمینا کبھی آپ پنجابی میں کلام دیں، تو میں نے کہا کیوں نہیں، میں دوں گی۔ ہماری پنجابی زبان ہے، پنجاب کے ہیں، ہماری پنجابی زبان ہے، تو میں ضرور کلام کو پنجابی میں شیئر کروں گی آگے جیسے خدا کی مرضی۔ لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہوں کہ جیسے کچھ لوگ ہمارے بیٹے بیٹیاں مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لینے کو ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اسی طرح سیکھیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، کیوں بپتسمہ لینا ضروری ہے، کیوں پانی کا غسل کرنا ضروری ہے، اور کیوں یہ ہمارے مسیحیوں کے لیے اہم ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکو جو صلیب پہ تھا، ابھی جو ڈاکو صلیب پہ تھا، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں اس نے تو کوئی بپتسمہ نہیں لیا، اس نے تو کوئی توبہ نہیں کی، اور وہ تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں چلا گیا، تو پھر بپتسمہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ لیکن آج نہ تو آپ ڈاکو ہیں، نہ تو آپ کے ہاتھ اور پیر میں کیل ٹھوکے ہیں، اور نہ ہی آپ صلیب پر ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو پھر ہمیں توبہ کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن کلام مقدس کا لکھا کہ وہ ڈاکو جو فردوس میں چلا گیا، فقط اس نے یسوع مسیح پر ایمان لے آیا۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم سوچیں کہ بپتسمہ کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، آپ بپتسمہ کبھی نہیں لے سکتے جب تک آپ کے اندر ایمان نہ ہو۔ ایمان سے آپ مسیح کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، ایمان سے آپ مسیح کو پہن سکتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے، ہاللیلویا، جدوں تک کوئی نوے سرے تو پیدا نہ ہوئے، او خدا دی بادشاہی نو نہیں دیکھ سکتا۔ جدوں تکر کوئی نوے سرے تو پیدا نہ ہوئے، او خدا دی بادشاہی نو ویکھ نہیں سکتا۔ ہن نئے سرے تو اسی پیدا کیویں ہونا ہے؟ نوے سرے تو اسی ادوں پیدا ہوواں گے جدوں اسی یسوع مسیح دے خون دے نال دھل جاواں گے۔ ہن دھلنا جنوں اسی دھلنا، اردو میں کہتے ہیں دھلنا، ہن یسوع مسیح دے نال خون دے نال اسی دھوئے جائیے، چنگے صاف کیتے جائیے، ساڈی میل دور ہوئی ہے، ساڈی گندگی دور ہوئی ہے، تے دنیا دی کوئی ایہو جی طاقت نہیں ہے جڑی تہاڈی میل نو دور کر سکے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ دنیا دی ایسی کوئی طاقت نہیں جڑی تہاڈی انسان دی میل تے گندگی دور کر سکے۔ اسی دیکھتے ہیں کہ ایک گل خدا دے بندے داؤد نے کیتی،
ਜ਼ਬੂਰ 51 चैप्टर पढ़ो तुसी ते उनदे विच लिखिया है, बाइबल हमारी उर्दू में है, और उसमें लिखा है मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। खुदा दा बंदा दाऊद कह रहा है कि मेरे बदी तो मैनू धो दे। अज तक शायद कोई भैन या कोई भरा ने खुदा की हजूरी च आके ऐ नहीं किया होना कि यसु मसीह मेरे गुनाहां नू धो दे, अज जरा मैनू धो चंगी तरह, मैनू जरा मांज ते मैं लिशक जावां ते मैं चमक जावां, मेरी पॉलिश भी कर। हालेलुया। कलामे मुकद्दस यूसाया कहता है पहले बाब दे विच कि जाओ अपने आप नू धोवो, अपने आप नू धोवो, अपने आप नू पाक करो, तब तुसी खुदा दे मज़बे दे लायक बनोगे। हालेलुया। लेकिन किस तरह सी अपने आप नू धोना है? जिन्नी देर तक असी धुलांगे नहीं, जिन्नी देर तक रब सानू धोएगा नहीं, जिन्नी देर तक उनका खून सानू पाक नहीं करेगा, जिन्नी देर तक उनके लहू नाल असी धुलांगे नहीं, साफ नहीं होवांगे। लिखा है कलामे मुकद्दस दे विच कि जिन्नी देर तक तुसी धुलना जाओ, साफ ना हो, पाक ना हो, तुसी खुदा दे लायक नहीं बन सकते। हालेलुया। क्योंकि वही एक खून है जड़ा सानू धोंदा ते पाक साफ करदा है ते साडे गुनाह दी मैल नू गंदगी नू दूर करदा है। हालेलुया। और ऐसा कोई खून नहीं है जड़ा सानू पाक कर देवे, जड़े साडे ऐबा तो सानू धो देवे। लेकिन दाऊद भी इत्थे यही कहन दिया है, कहता ऐ खुदा मेरी बदी जो मैनू धो दे। हर एक चीज जो मैली होती जब तक मेरे अजीजों धुल ना जाए वो पाक नहीं हो सकती। हर चीज को पाक करना से धोना पैंदा है। जे किते बाहरों बर्तन खरीद रहे हो तुसी ते ओ भी घर ले आके तुसी धोवोगे ते फिर ही उन्हें इस्तेमाल करोगे। हालेलुया। ते फिर इंसान जड़ा गंदगी ना भरिया है, जड़ा गुनाह ना भरिया है, ते जिन्नी देर तक वो नहीं धुलेगा फिर वो किवें रब दे लायक होएगा। इंसान नूं अज धुलण दी जरूरत है ते धुलना असी यसु मसीह दे खून दे नाल आ। फिर आगे जाके कहता है 51 बाब की 2 और 2 से 7 आयत पर आएंगे और यहाँ पर क्या सूफे से मुझे साफ कर। हालेलुया। कहता है सूफे दे नाल एक ऐसी ये जाली बन जाती है, एक ऐसा पौधा है जो जाली बन जाती है। ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਤੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਲੀ सी बन जाती है। इसी तरह खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि ऐ खुदा ज़ूफे ना मैनू धो ते ज़ूफे ना मैनू पाक कर, और कहता है ओदे ना धो ते मैनू बर्फ तो भी ज्यादा चिट्टा कर दे। हालेलुया। कहता मैनू बर्फ तो भी ज्यादा चिट्टा यानी सफेद मैनू चिट्टा कर दे। चिट्टा दे हर बंदा होना चाहता है कि नहीं होना चाहता? कौन कौन चिट्टा होना चाहता है? चिट्टे भी चिट्टा होना चाहते हैं, तकाया तो सर नहीं ला हैं, चिट्टे भी चिट्टे होना चाहते हैं, लेकिन ऐ चिट्टे ना हो जेडे कुछ दिन आ जाए चिट्टे होना ये ते अपनी चिट्टे हो। हालेलुया। जड़ा नूर ते रंग हमेशा ਤੁਹਾਡਾ बरकरार रहे ते कदी भी खत्म ना होवे। चिट्टे होना ये ते ओ चिट्टे हो, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਫੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਧੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਏਗਾ ਸਫੇਦ ਕਰੇਗਾ। बार-बार खुदा ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ खुदा ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ 9 ਹੀ 1000 ਨੇ ਦੌੜੀਆਂ नौकर चाकर खादम अफवाज हर एक चीज रथ घोड़े बेशुमार ने ते तो वास्ते खुदा को कहता पिया। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं पंजाबी दी? असते पंजाबी ही आ ना सारे।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋਏਗਾ, ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ भी देगा। मैं सोचा बैठ सकते हो, कैसे खड़े रहते हो, एक बार सेट कर ले, वो आप मुंह बहुत अच्छे ना तो इसलिए मैं खड़ी हो चलती। कहते हैं मैनू धो, मैनू पाक कर, ते मैनू चिट्टा बर्फ दी मानी कर। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੂਫੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੂਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਕੇ ਧੋ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਤੇ ਧੋ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਅੱਲਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਾਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਏ ਉਹ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕੈਸੇ ਯਿਸੂ ਦੱਸਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਰੱਬੀ, ਐ ਉਸਤਾਦ, ਐ ਆਕਾ, ਐ ਮਾलिक, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ बेटा है और मैं हर किस भी तेरे कोलों अपने पैर नहीं धोवांगा, अपने पैर तेरे कोलों हर किस नहीं धोवांगा। तो यीशु ने कहा चल ठीक है, फिर जे तू पैर नहीं धोने तो फिर तू मेरे जमात च शामिल नहीं, तू शागिर्दां दी टीम च शामिल नहीं, तू मेरे बदन दा हिस्सा नहीं। क्योंकि कलाम मुकद्दस रोमियो का फातिहा फरमाता है कि जिन्नियां ने भी बपतिस्मा लिता वो मसीह च शामिल, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਧੁਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਖਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਖਮਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਪੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਖਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਮਲ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੁਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਦਾਊਦ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਆਈਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, बेटे ते बेटियां नहीं बन सकते। बहुत जरूरत है कि असी अज अपने गुनाहां दा इकरार करिए ते तौबा करिए। वक्त बड़ा नजदीक है,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ 2 बार पढ़ांगे, आज भी ਤੇ इतवार को भी। हालेलुया। क्योंकि इतवार को हमारे बेटे और बेटियों के बपतिस्मे हैं चर्च के बाद, तो ये चैप्टर जो है हमें उनको बताना बहुत जरूरी है। कलाम मुकद्दस यूहन्ना दी अंजील, लूका दी अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत से हम तलावत करेंगे, और से सुनिएगा, फिर इसके बाद हम इस पर तशरीह करेंगे। और वो यरदन के सारे गिरदो नहा में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा, जैसा कि यूशाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बयान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा है वो नीचा, हमारा रास्ता बनेगा और हर बशर खुदा की नजात को देखेगा। बस लोग उसके बपतिस्मा लेने को निकल कर आते देखा और उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा उन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अब तो दरख्तों की जड़ों पर, ये सबसे अहम आयात है, गौर से सुनिएगा, अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। कलाम मुकद्दस के अंदर ए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिंदा ना है यूहन्ना अस्तबागी, ए यीशु मसीह नालों 6 महीने वड्डा है और तमाम नबियां नालों आखिरी नबी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह तो कितने महीने वड्डा है? 6 महीने वड्डा, ते तमाम आखिरी नबियां तो पुराने जमाने दे नबियां तो आखिरी नबी, और आप की किस चीज की मुनादी दे रहे हैं? और यीशु मसीह का कजन भी है, रिश्तेदार भी है। आप बताएं किस चीज की मुनादी कर रहे हैं? किस चीज की? तौबा की मुनादी करता है। कहता है ऐ सप दे बच्चों, सप कौन है? सप को कितनी तस्वीर दी गई है? अबलीस ही दी गई है। कहता है ऐ अबलीस दे बच्चों, ऐ शैतान दे बच्चों, तानू किन्ने दस दिता वे कि गजब के कोलों बचो, बल्कि मैं कहना वा कि गजब तो बचन वास्ते आके तौबा करो। हालेलुया। कहता तौबा करो ते तौबा दे मुताबिक फल लियाओ ते बपतिस्मा लवो। जिन्नी देर तक तुसी बपतिस्मा नहीं लवोगे तुहाडी तौबा नहीं होएगी, तुसी इकरार नहीं करोगे तुहाडी तौबा नहीं होएगी। कहता है हुण ते दरख्त दे उत्ते कुल्हाड़ा रख दिता है, हर एक दरख्त दे उत्ते की रख दिता है? कुल्हाड़ा रख दिता है। रखिया गया है साडे उत्ते कुल्हाड़ा। ऐ ना सोचो दरख्त इंसान है, दरख्त इंसान की तशबीह दे रही है। खुदा दा कलाम कहंदा है हुण ते हर दरख्त दे उत्ते कुल्हाड़ा रख दिता वे, रख के देखदा पिया। इसको बिठाएं, इनको बिठाएं, बैठ जाओ, अब नहीं उठना। हुण की कीता है कि कुल्हाड़ा दरख्त उत्ते असी दरख्तां ते जड़ा दरख्त तौबा नहीं करेगा, जड़ा दरख्त यानी फल नहीं करेगा, जड़ा इंसान तौबा नहीं करेगा ते जड़ा दरख्त फल नहीं ले आएगा, वो की कीता जाएगा? वो मुट्ठों ही कट दिता जाएगा। ऐसे कोलो यीशु मसीह जदों एक अंजीर दे दरख्त दे कोल गए ते उत्थे जाके वेख्या कहंदा की इन्ने साल हो गया बयाना पे फल ही नहीं देता पिया, इन्नू कट दे। माली से क्या यीशु मसीह ने कहा इन्नू कट पर है, जगह नहीं रोकया है, ऐ दूसरी
ਪਾਈਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਇਆ 2 ਘੁੱਟ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕੀ फर्क पैदा है। ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद भी बेफल होते और दूसरों को भी बेफल कर देते हैं। उनते कुल्हाड़ा जड़ा है और दरख्त उत्ते रख दिता गया है कि जड़ा दरख्त फल नहीं लियाएगा वो कट दिता जाएगा। जड़ा इंसान तौबा नहीं करेगा ते अपने गुनाहों तो इकरार नहीं करेगा ते यसू दे लहू ना नहीं धुलेगा ते अपनी मैल ते गंदगी दूर नहीं करेगा, समझ लो कि उनके उत्ते कुल्हाड़ा रख दिता गया है। यसू ने क्या ला परा एनु उखाड़ दे, एवें जगह नहीं रोके है, वक्त पे जाया करता है। आज बेकार इंसान कोई कामकार ना करे, अच्छी जिंदगी ना गुजारे, गंदगी दे विच जिंदगी गुजारे, मौजा लुटे, याशी करे तो सोकी पे करता है, अपना वक्त पे जाया नहीं करता, नहीं करता पे वक्त जाया। गाने सुनता है, मोबाइल दे इधर उधर दियां चीजां वेखदा है, भावें ओ कुड़ी है ते भावें ओ मुंडा है, भावें औरत है ते भावें मर्द है, मोबाइल देते अपना वक्त पे जाया करते हैं। अगले ने तो फिल्म बना के पैसे दे दिते ने, ड्रामा बना के ते तेनू वेख के की मिलना है, तू ते अपना वक्त जाया कर देता। आज उस दरख्त दे उत्ते रब ने कुल्हाड़ा रखे, जड़ा फल नहीं लियांदा पिया ते बेकार है, जगह नूं भी रोक के बैठा है ते दूसरियां नूं भी परेशान पिया करदा है। यसू ने कहा ला परा उखाड़ दे ते उस माली का मतलब समझते कौन है? हाँ, माली कौन है? बाप की हिफाजत, लेकिन अब माली कौन है? अब यीशु मसीह के खादम माली है, हम माली हैं। यीशु रहन देसु, यीशु जरा रहन देसु, ऐसा भी नु रहन देसु। यीशु नहीं, मैं एनु समझावांगा, एनु और तेरे कलाम दियां गल्लां दसांगा, एनु और तेरे कलाम दा प्रचार दसांगा, एनु और तेरे कलाम दे अहद दसांगा। शायद हो सकदा वे कि इस साल ए फल ले ही आवे, मैं थाला पोतांगा, मैं खाद पावांगा, मैं बड़ा इहदी हिफाजत करांगा। यीशु मालिक होने खादम ने, खादम कहता यीशु मेरे बंदे नूं मेरी भेड़ नूं ना मारी, मैं इहदी खातर दुआ करांगा, मैं इहदी खातर इहनूं मैं बचावांगा, मैं इहनूं तेरे कलाम दियां गल्लां दसांगा। तेरे कलाम दियां गल्लां जिंदगी दियां गल्लां ने। यीशु रहन दे, यीशु ने कहा ठीक है फिर ऐसा वेख लेते हैं, ते जे इस साल भी ना फल लिया ते ऐसे साल जी कटिया जाएगा। हालेलुया, मैं इस साल च कट दांगा खुदा, भावें आके तू आप कट ले। खादम कहंदा है इस साल इहनूं रहन दे, मैं वैसे दुआ करांगा, तेरे कलाम दियां गल्लां दसांगा, खाद पावांगा, थाला खोदांगा, जिथों तक हो सकेगा मैं मेहनत करांगा। ए साल रहन दे ए मालिक। यीशु ने कहा ठीक है, जे इस साल फल ना लिया ते आंदे साल ए जमीन तो कट दिता जाएगा। समझ लो दरख्त इंसान है ते जे वो अपनी करतूतां तो बाज ना आवे ते जे अपनी हरकतां तो बाज ना आवे ते ऐ ना समझो कि तुसी जिंदगी तुहाडे प्यो दी जागीर है, जायदाद है। जिंदगी खुदा की दित्ती हुई अमानत है, इहदी चंगी हिफाजत करो। जे दिन वधाना चाहते हो, खुशियां वेखना चाहते हो ते खुदा दे नाल वफादार रहो ते तौबा करो। यूहन्ना कौन सी जड़ा उन्हें एडी मुसीबत पई हुई सी कि मैं जाके पहले जब यसू तो 6 महीने कहना भाई नजात आ रही है, उन्हें कहना हर बशर की करेगी नजात देखेगी, उन्हें इनके देख लेती है। देखो उन्हें इनके देख लेती है, जिवें उन्हें शमौन ने क्या जड़ा हत्थ दे विच सी, उन्हें की किया यसू हुण अपने कौल दे मुताबिक मैनूं चुक लै क्योंकि मैं तेरी नजात देख ली है, मैं तेरी नजात देख ली। थी नजात ये वेखनी है। शैतान दे काम ते बथेरे वेख लेते ने, डंडे उनके बथेरे खा लेते हैं, वो अगे भी डंडे नाल मारेगा और कुछ नहीं करेगा, मुसीबतां च पाएगा। आज जरूरत है जे तुसी कहो मेरा बचपन च बपतिस्मा हो गया सी ते एडे जे बच्चे दा ये तो बहुत बड़ा है, मेरा ख्याल है इस तो छोटे बच्चे दा बपतिस्मा होंदा है ते एडे जे बच्चे दा सी बपतिस्मा करवा रही है ते जदों ए होवे 30 या 35 सालां दा ते फिर इहनूं पता होएगा अपने बपतिस्मे दा, इहनूं तौबा दा पता होएगा, इहनूं अहद दा पता होएगा, इहनूं खुदा दे
कानून का पता होएगा, एन खुदा की गुरबत का और खुदा के मसद का और खुदा की रूह का पता होएगा। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਿਚੋੜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ करना, क्योंकि मैं खुदा दे कलाम ते खुदा दे खादमां दे सामने इकरार कीता है, जिवें बाइबल ते हाथ रख के ते खुदा दे खादमां दे सामने बंदा बुढ़ी ना निगाह पड़ाता है ते अहद करता है। दुख होवे मुसीबत होवे, मैं रोवां ते भावें मैं हंसां, मैं अपने जीवन साथी दे साथ रहांगा ते जिंदगी दा साथी ते यीशु मसीह है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ नहीं करना, अपने गुनाहों तो तौबा करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हर एक दरख्त के उत्ते की कर दिता गया है, कुल्हाड़ा रख दिता गया है। मैं कहनी हां आज तुसीं ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ रंग ਵਿੱਚ रंगे हो, ये चैप्टर मैं इतवार ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੀ। रंगण वाला रंग ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੰਗਾਉਣ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, लेकिन यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ। ਯੂਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਵਧਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਹੱਥ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ तौबा करेगा। हालेलुया। यूसाया पहला बाब पढ़ सकते 25 आयत है मेरा इतवार का, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छेड़ देती हूँ। यूसाया कहते हैं कि खुदा तेरे ते अपना हाथ बढ़ाएगा उदों जदों तू तौबा करेगा। हाथ है भी नहीं होता, पाप होगा जितने मर्जी बन जाएगा। जे तुम जुआ खेलते हो तो उत्थे आइए यीशु हाथ बढ़ावे। तुहाडे बड़े सारे लोग ने जुआ खेलते कहते हैं यीशु मेरी मदद करी, मैं आज जित के जाना, यीशु मेरी मदद करी, आज मैं जित के जाना, यीशु मेरे दोस्तों ना मेरी शर्त लगी है, यीशु मेरी मदद करी, मैं पूरी बोतल पीने की शर्त लाई। यीशु बेचारा ने की करे, यीशु ने तेरी खातर जान दी कि तू नेकी दी राह पे लगे या बुराई दी खातर तेरी असली यीशु ने जान दी। यीशु मसीह पाक है और जरूर है कि उसके लोग भी पाक हो जाए, लेकिन वो अपने रंग च रंगना चाहता है। आरएस कमल का एक गीत है बड़ा जबरदस्त, कहता है रंग दिता यीशु ने मैनू रंग दिता, अपने लहू विच रंग दिता। यीशु मसीह तुहानू अपने लहू दे रंग विच कितना सोहना हुंदा लहू दा रंग, तुहानू अपने लहू दे रंग विच रंगना चाहता है। ते यूसाया कहंदा है उस अपनी किताब च पहले बाब च कि जे यीशु तुहाडे ते हाथ ਵਧਾਏਗਾ, खुदा तुहाडे ते यहोवा अपना हाथ ਵਧਾਏਗਾ ते तुहाडी मैल दूर करेगा। की करेगा? तुहाडी मैल दूर करेगा, अपना हाथ ਵਧਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ मैल दूर करेगा ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ते ਜਿਹੜੇ रंग च रंगे निकलो, खुदा हाथ ਵਧਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ रंग चों कढ़ देगा, जुदा कर देगा ते फिर अपने रंग च ਤੁਹਾਨੂੰ रंग देगा। हालेलुया। तो अब रंगना किस तरीके से आते, किस तरह रंगांगे? रंगण वास्ते जरूरी है पानी होवे, है पानी दे विच डुबोया जावे ते फिर ही रंग चढ़ेगा ना। सुक्का रंग चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। जे यीशु दे रंग च रंगना है ते फिर पानी दा मुशाबा लेना पैना है, पानी का बपतिस्मा लेना पैना है। यीशु के रंग में रंगिया जाना है तो पानी का बपतिस्मा लेना पैना है। फिर तुहानू पानी का बपतिस्मा मिलेगा, फिर तुहानू रूह का बपतिस्मा मिलेगा, फिर तुसी नवे सिरे तो पैदा होगे, फिर खुदा तुहानू अपने पाक रूह की अग का बपतिस्मा देगा, गैर ज़बान देगा। गैर ज़बान पाके ये नहीं कहना कि मैं गैर ज़बान बोलने लगा तो मेरे वाला बंदा ही कोई नहीं। गैर ज़बान सिर्फ आपके लिए और आपके लिए फायदेमंद है, दूसरे से फायदेमंद नहीं। ये दूसरों के लिए एक अजनबी है। जिहड़ी चीज़ तुहाडे से अजनबी हो तुहाडे से फायदेमंद हो सकती है, एक अजनबी तुहाडे से फायदेमंद हो सकता है।
نہیں ہو سکتا. غیر زبان ہم انسانوں کے لیے اجنبی ہیں، لیکن جن کے اوپر اترتی ہے، جنہاں کے اوپر اترتی ہے انہاں واسطے برکت کا باعث ہے. ہاللیلویا. اے تہاڈی برکت ہے، پاک روح دی نعمت ہے. پھر بھی جھکے رہو تاکہ تانوں ہر پاک روح دی برکت ملے. ایک نہیں لینی، اسی تے پاک روح دیاں سب برکتاں لینی. ہاللیلویا. تے میں یسوع مسیح دے رنگ چ رنگنا ہے. یسوع کئی لوگ یسوع مسیح دے رنگ چ رنگے بھی جاندے نے، کام انہاں نے اپنا ہی کرنا ہے، لیکن کام بھی اپنا نہیں کرنا. جے رنگنا ہے تے پورے طریقے نال رنگنا ہے. توبہ کرنی ہے اپنے گناہاں تو جڑے کیتے نے، تے یسوع مسیح دے خون نال دھلنا تے پاک ہو تے صاف ہونا تے بپتسمہ لینا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو آئیں اپنے سروں کو چکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور تیار ہو جائیں اپنی شفا کو لینے کے لیے. او راسو تو کے بیٹی میں آنیش. ہاللیلویا. اکڑے سو. ہاللیلویا. او رابا روسو تو کے. ہاللیلویا. اپنی اپنی جگہ پر ہاتھ رکھ لے اس مرض پر. اور جو توبہ کرنا چاہتا ہے، مہربانی توبہ ایک بار ہو دیجیے، بار بار نہیں ہوتی. ایک کھوئے والی کلفی نہیں، یہ توبہ